لائیو آگے ہاں جی لائیو ہے. ہاں جی سب لائیو ہے. دائرہ دورہ ذرا اچھے سے بندہ کٹ گیا ساڈا کٹیا نہیں بندے اوکے السلام علیکم ناظرین، میں کامران عباس، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ، میں میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں ندیم بھائی کدھر گئے؟ آج ہم ادھر پہ لائیو ہوئے ہیں استاد بابا سکندر صاحب کی طرف، جیسے کہ ندیم بھائی آؤ نا یار، مختلف جو یہ میڈیا پرسنز ہیں انہوں نے اسٹیٹس بھی لگائے تھے تو کہ جی آج ہم جائیں گے استاد بابا سکندر صاحب کی طرف، اور اسپیشلی جو آج آنے کا مقصد اور موٹو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر آج جو کل گفتگو ہوئی تھی جناب استاد ملک مبشر کھوکھر صاحب کی طرف، اس میں پہلے تو شوق چلتا رہا، شوق کے بعد جو انہوں نے ڈسکشن کی اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی، کچھ گلے کیے، کچھ شکوے تھے، اور کچھ جو ہے انہوں نے چیلنج کی بات کی تھی استاد بابا سکندر صاحب کے لیے. تو اس سلسلے میں وہاں پر بڑی طویل ڈسکشن چلتی رہی، بڑی اچھی گفتگو ہوتی رہی، اور اس کا جو لب لبات تھا وہ یہی تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ استاد بابا سکندر صاحب ان سے مقابلہ جات طے کریں. وہ ویڈیو ہوئی، اس کے بعد وہ ویڈیو کافی وائرل ہوئی، فوری طور پر ہی وائرل کی گئی. اس کے بعد بہت سے دوستوں نے یوٹیوب پر بھی، جو مختلف یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ان میں سے کلپس جو ہے کٹ کر کے اپنی آئی ڈیز پر لگائیں، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپس میں بھی پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر وہ ویڈیو بہت زیادہ اور بڑی تیزی سے وائرل کی گئی، جس پر مختلف آراء لوگوں کی آتی رہی، جن میں اسپیشلی جو بابا سکندر صاحب کے فالوورز تھے ان کی طرف سے تھوڑا سا غصہ بھی دکھایا گیا اور جذباتیت کا عنصر بھی سامنے آیا، جبکہ جو استاد ملک مبشر کھوکھر صاحب کے شاگرد حضرات تھے تو ان کی طرف سے بھی بڑا جو ہے اس پہ جذباتیت آئی، اور انہوں نے بھی جو ہے یہ شو کیا کہ وہ بھی اپنے استاد کے ساتھ ہیں. اچھا، کچھ اس ویڈیو کے بعد ایک ویڈیو آئی جس میں ایک اور چھت سے لاہور کی جو ہے لاہور قلندر کی چھت سے ادھر سے بھی جو ہے 1-to-1 مقابلوں کی آواز دی گئی ہے. اس کے علاوہ استاد ملک منتظر مہدی، ملک قاسم کھوکھر اور استاد ملک نبیل کھوکھر صاحب کی طرف سے بھی 1-to-1 مقابلوں کا کہا گیا ہے. تو ہم آج موجود ہیں استاد بابا سکندر صاحب کے پاس، اور ان سے آج ہم ایک تو اس کا جواب بھی مانگیں گے، اور دوسرا ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ جو اتنی زیادہ کبوتر پروری میں سے اٹیچ ہوئے ہیں آج کل، ہر جگہ پر آپ کا چرچا بھی ہے، لوگ آپ کے ساتھ موجود بھی ہیں، فالوورز بھی آپ کے ہیں. ندیم بھائی مستقل جو کیمرہ ادھر ادھر لوگوں پر مار رہے ہیں، دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو کسی وجہ سے ہی یہ لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں. تو ندیم بھائی بھی یہ اسی لیے دکھا رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ لوگ ان سے بھی کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. علم کسی کی میراث نہیں ہے، یہ بات بابا سکندر صاحب نے 12 دفعہ اپنے انٹرویوز میں کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے. وہ اپنے علم کو پھیلا رہے ہیں جتنا ان کو اس کے بارے میں معلوم ہے، جتنا ان کو ایکسپیرینس ہے، لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ ہے، یہی نہیں ہر فیلڈ میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا سیکھنے کے جو مراحل ہیں وہ ختم نہیں ہوتے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے جس طرح سے استاد بابا سکندر صاحب لوگوں کو علم دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح بہت سے دوست ہیں جن کو بڑی اچھی چیزیں بھی سیکھنے کو مل رہی ہوں گی، اور جن لوگوں کو اگر نہیں کچھ سمجھ آ رہی تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارا یا استاد بابا سکندر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر شخص کو اپنے مزاج اور اپنے جو اس کے اندر کا ضمیر ہے اس کے مطابق ہی اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کیا حاصل کر رہا ہے ایک استاد سے. جیسا کہ حضرت علی کا ایک قول ہے، مجھے یاد آ گیا ساتھ ہی کہ انہوں نے کہا جب
علم شریف کے پاس جاتا ہے تو اس کی شرافت بڑھ جاتی ہے، اور جب علم رذیل کے پاس جاتا ہے تو اس کی رسالت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کی مثال انہوں نے اس طرح سے دی تھی کہ جب آب نیساں برستا ہے تو سمندر کی تہہ سے اوپر جو سطح ہے اس پر صدف آ کے منہ کھولتا ہے تو اس کا قطرہ اس کے بھی منہ میں جاتا ہے، اور سانپ کے بل سے سانپ نکل کے منہ کھولتا ہے تو آب نیساں کا قطرہ اس کے بھی منہ میں جاتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے کہ جب صدف کے منہ میں جاتا ہے تو وہ جوہر بن جاتا ہے، اور جب سانپ کے منہ میں جاتا ہے تو وہ زہر بن جاتا ہے۔ تو یہ علم کا جو سلسلہ کار ہے یہ چلتا رہے گا۔ جو لوگ علم پھیلاتے ہیں وہ صرف اس مقصد سے علم پھیلاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کوئی بہتری ہو۔ اب یہ اس شخص کا ظرف ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو دیکھتا ہے، لیکن استاد بابا سکندر کا یہ جو موٹو ہے، یہ جو مقصد ہے، یہ بڑا زبردست ہے۔ اس کے مطابق وہ جو جتنے بھی دوست احباب ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، بڑا اچھا سیکھ رہے ہیں، بڑا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو دوست سمجھ رہے ہیں کہ استاد بابا سکندر صاحب ایک نان پریکٹیکل استاد، ان کو شاید کبوتر پروری کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے استاد بابا سکندر صاحب سے۔ سب سے پہلے ہم ان سے ان کا پراپر بیان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کے بعد جائیں گے آگے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے چلتے ہیں استاد بابا سکندر صاحب کی طرف۔ جی استاد محترم، آپ نزدیک ہو جائیں۔ انٹرو مار دیا بابا جی، 2 منٹ صرف مجھے صرف 2 منٹ۔ جی السلام علیکم دوستوں، کبوتر بازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اصغر۔ دوستوں کل ایک چیلنج ہوا ملک مبشر کھوکر کی طرف سے، تو آج موجود ہے بابا سکندر کی طرف، اور امید کرتا ہوں بالکل شارٹ سا انٹرو دیتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے چیلنج کیا جائے گا اور ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ جی بابا ہاں جی شروع کروں جی پہلے تو میرے جتنے بھی فالوور ہیں، دیکھنے والے سننے والے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں، بہت زیادہ مشکور کہ وہ میرے پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، میں جو کبوتر پروری میں کرنا چاہ رہا تھا نا، الحمدللہ وہ میں نے کر لی ہے، وہ میں نے اچیو کر لی ہے۔ وہ کسی سے اچیو کر لی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کبوتر پروری میں کامیاب ہو گیا۔ کہ لوگ جتنے جو لوگ دیکھنے والے سننے والے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہر طرف سے ہمیشہ اچھائی اور برائی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ میں کامیاب کس طرح ہو گیا کہ لوگوں کی چاہت ہے میرے ساتھ شو کرنے کی، اور بھی بڑی دنیا میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے، بڑے انٹرویوز آ رہے ہیں، اسی کے لیے کسی کی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بابا سکندر استاد ہے، تو اسی لیے اس کے ساتھ شوق لگانے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں نا۔ بات رہ گئی ملک مبشر کھوکر کی، ٹھیک ہے نا جی۔ ملک مبشر کھوکر نے کہا جی بابا سکندر درویش آدمی ہے، وہ ساروں کو پتا درویش ہی ہے، کیونکہ اتنا سچ بندہ درویش ہی بول سکتا ہے، کوئی جو سا ہے چور نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے جی۔ بھائی صاحب نے میرے ساتھ بازی کا اعتراف کیا لگانے کے لیے، میرے کبوتروں کا کرنے کے لیے۔ پہلی تو بندہ یہ ان سے بات پوچھے کہ آپ میرے شاگرد ہوئے کیوں تھے، میرے شاگرد کیوں ہوئے تھے؟ باقی تو اتنے کبوتر پرور حضرات ہیں، اتنے استاد ہیں، اور کوئی نہیں ملا تھا، میں کیوں چوز کیا گیا؟ یعنی کہ آپ مجھے استاد سمجھتے تھے تو آپ میرے گھر چل کے آئے نا، کہ میں آپ کے گھر چل کے آیا تھا، آپ ہی میرے گھر آئے تھے نا دبئی۔ اگر نہیں یاد تو میں آپ کی موویاں نکال لوں گا، سارا کچھ آپ کو یاد کرا دوں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسری بات، میرے کبوتروں کا آپ نے دیکھنا ہے، تو وہ جو ادھر سے پنجریاں بھر بھر کے کبوتروں کی آتی تھیں، وہ کیا پھر بیچ دیتے تھے؟ کیونکہ آپ اپنے انٹرویو میں کہہ رہے ہو کہ میں کبوتر بیچتا ہوں۔ پہلی تو مجھے یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے یہ کبوتر بیچنے کے لیے مووی بنائی ہے کہ چیلنج دینے کے لیے مووی بنائی ہے میرے بھائی صاحب، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں جی، زبان ہر بندے کے منہ میں ہے، اخلاق سے گری ہوئی حرکت کسی بھی ٹیچر کے لیے اچھی نہیں لگتی،
ठीक है ना जी। आपने जो लड्डू खाया कबूतर परवरी के हिसाब से, वो आप वापस करो, ठीक है ना जी। उस्ताद दूसरा पकड़ो। उन्होंने मिसाल दी बोधी भट्टी की और बाऊ तायर की कि उनकी दोनों की आपस में बाजी लगी। मेरा ख्याल है आपको कोई मशवरा देने वाला बंदा नहीं है, आपको कोई मशवरा देने वाला नहीं है। जो पीछे से आपको लुकमे दे रहे होते हैं ना, जरा उनसे बैठ के ना कुछ 4-6 बातें जो है लिख भी लिया करो। मुझे पता है आपका कि आप जज्बात में ऐसी बातें कर जाती हो जो आपसे संभालनी औखी हो जाती हैं, और आपके मीडिया पर्सन से भी वो संभालनी औखी हो जाती है, ठीक है ना जी। पहली तो बात ये है कि आपने बाऊ तायर का और बोधी भट्टी का जिक्र किया। बाऊ तायर का बोधी भट्टी शिगिर्द है या बोधी भट्टी बाऊ तायर का शिगिर्द है? कि दोनों चेयरमैन साहब के शिगिर्द है। और चेयरमैन साहब की कामरान की मूवी बनी, हम भी देखते हैं, थोड़ा सा मीडिया से हम भी टच है। उसमें चेयरमैन साहब ने कहा ये जी हमने एक शुगर लगाया कबूतर परवरों के लिए, एक शुगर लगाया एक एंजॉयमेंट के लिए, हमने कबूतर उड़ाए हैं आपस में ना, ठीक है जी। आप मुझे चैलेंज कर रहे हो, वो चैलेंज होके काम नहीं हुआ। और चैलेंज कर किसको रहे हो? चैलेंज कर किसको रहे हो? अपने उस्ताद को कर रहे हो जिसका लड्डू आपने खाया हुआ है। चेयरमैन साहब के साथ बाऊ तायर की बाजी नहीं उड़ी या दूसरे की नहीं उड़ी, बोधी भट्टी की। उस्ताद राजा इफ्तिखार काका मिसाल, वर्ल्ड फेमस उस्ताद, ठीक है जी। लड्डू वापस हुआ नहीं हुआ, पग वापसी हुई कि नहीं हुई, ठीक है जी। उसके बाद में मुकाबले भी तय हुए, उड़े भी हैं। पहली तो बात है ना कि मैं ना मानू, हो खुदा के बंदे क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी बादशाह नहीं हो, तुम्हारे सिर पे ताज नहीं है अकेला कबूतरबाजी का, कि तुम्हारे घर से कबूतरबाजी के कानून नहीं निकलते। जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो कबूतरबाजी बनाई है उसका वही असूल हुसन है। आपने बाजी बूदी कोई नहीं लगानी, आपने बाजी बूदी कोई नहीं लगानी। आपने सिर्फ और सिर्फ वो जो मीडिया पर्सन और जो दिखाया गया ना उसमें सारा कुछ, वो सिर्फ कबूतर बेचने का तरीकेकार है। तो मैं लाइव में अपने फॉलोअर को कहता हूँ अल्लाह का वास्ता ये देखो हाथ जोड़ के, और भाई ले लो इसे कबूतर, ले लो इसे कबूतर। उन्हें कबूतर बेचने हैं तो इसे कबूतर ले लो। उड़ाने ना उड़ाने का बात सवाल भी पैदा नहीं होता उसका कि वो उड़ाए, क्योंकि उसको पता है मेरा, उसको मेरा बड़ा अच्छे तरीके से पता है। बाकी अगर लाहौर कलंदर वालों की बात करो, अच्छे प्लेयर, सुलझे हुए प्लेयर, ठीक है, तमीज के दायरे में रह के उन्होंने कहा कि जी आप उधर गए। और अल्लाह के बंदो, आप भी सोशल मीडिया देखते हो, कमरान बाज इधर खड़ा हुआ है, वो मैंने मिठू को वो दावत दी थी। मेरा ख्याल है वो देखते नहीं है कबूतर परवरी को। 2.5 साल पहले मिठू लालिया ने मुझे दावत शौक दी थी कि हमसे कोई छत दे के बाबा जी शौक करें, तो मैं तो उनके घर गया हूँ बाजी लगाने के लिए, ठीक है जी। और दित्ते की छत पे बैठ के लाहौर की जो बात की गई थी, वो मेरे सादे मोहतरम ने, साद हाजी गुजर साहब ने कहा था कि आप हमें लाहौर में भी छत दो। मैं तो उधर भी बैठा हुआ, मुझे चेतर की, इसने कहा जी चेतर की बच्चों की लगा दो मेट्योर से। मैंने लाइव में कहा, मैं कहा लो जी उतावले मैं इनको मना करता हूँ कि टूर्नामेंट उड़ाओ, बाजी जो होती है आराम है ना करो। तो ये देख लो उतावले बैठे, ठीक है जी। अगर कोई बंदा किसी के भी वालिद को गाली बकता है, ठीक है जी, तो बेटे में अगर एक पर्सन भी गैरत का खून होता है, वो बोलता है या मैं मर जाऊंगा, इसको मार दूंगा। तो भाई अगर मुझे कोई आवाज देगा तो मेरे शिगिर्दों में भी गैरत का मादा है, जुबान उनके मुंह में भी है, वो भी 1000 बातें कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो एक बात तो भाई साहब की समझ नहीं आई, मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आई कि इनका एडवाइजर कौन है इनको मशवरे देने वाला, ठीक है जी। मैंने छत बनाई है ब्रीडिंग के लिए, इधर उड़ाने वाली कोई छत 2 साल से कामरान साहब आपको पता है कबूतर है, इधर से किसी ने पल्ला मारा कबूतर को नहीं, या कोई कबूतर उड़ा यहाँ से? नदीम भाई आप भी मेरे साथ काफी टाइम से अटैच हो। नहीं बिल्कुल नहीं। ये ब्रीडिंग वाली छत है, ये उड़ाने वाली है। नहीं, जब ये छत बनाई थी उसमें आपने बर्मला कहा था कि सिर्फ ब्रीडिंग से, ठीक है ना जी। आप क्योंकि जो मेरे साथ डेली के बात करने वाले बंदे हैं उनको सारी बातें पता है, ठीक है जी। अच्छा अगर भाई साहब कहते हैं इधर से उड़ाना है, वो तलवार सिलवे मेरे राखी दी है, तो मुश्किल नहीं है, इधर से मैं उड़ा लूंगा। पहले आप लड्डू बदली करो, फिर आपको 10 मरले को जगह खरीदो, 10 मरले जगह खरीद के उस पर सेटअप बनाओ नया, और उधर से शुरू हो जाओ। ये क्या बात है? अगर आपने बाजी उड़ानी, आपने बाजी नहीं उड़ानी, मुझे पता आपकी बाजी आपने नहीं उड़ानी,
आपने सिर्फ भागना है। आपने खुद अपनी मूवी में कहा है कि मैं लाहौर से बाहर निकल के मैंने शो किया है ना। ये लो चेतर की बात, यहाँ से चैलेंज है तुम्हें ओपन, बच्चों का तुम्हें चेतर का चैलेंज है, बिस्मिल्लाह करो। और भी जो कोई अगर लाहौर में कोई भाई दोस्त हजरात जिन्होंने कोई मूवियां बनाई है, मेरा किसी से कोई गिला नहीं, कोई इतराज नहीं, ठीक है जी। वो कहता है कोई इंची दे पकड़ लेता है, कोई ये पकड़ लेता है, वो मेरा भाई हो, ठीक है ना। अगर आपने शौक करना है, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करो। ये छत बैठी हुई है चेतर की आपसे बच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। और ये भी इलानिया कसमिया टोटल मेरे घर के बच्चे। एक कबूतर देते तेरे चाहते पुत्र कोई कबूतर है और बिल्कुल जेडे पहले आन मैं सारे खत्म करके दोबारा टोटली बाबे दे घर दे कबूतर बनाने, टोटली बाबे को लेके छड़े नहीं। बाबे और आके पहले अगले खत्म करो, बाद जना शौक करनी। इथों कोई बच्चा किसी मेरे शागिर्द कोई किसी ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ नहीं ਸਣੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ इस तरह ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ बैठे हुए साथ, ठीक है जी। फैसलाबाद चक जुमरा, ठीक है जी। टोटल ये जोन जिन्होंने बंदों ने चैलेंज किया, इनकी जिधर जिधर छत, हम नई पार्टी हैं तो अगर हमारे पास छतें हैं तो इनके पास हमारे से ज्यादा होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो इनके लिए शर्म वाली बात है। इनके लिए ये शर्म वाली बात है कि इनको फिर कोई सुनता नहीं है। ये खाली छूकी शाकी हैं, इश्क में छूकी हैं करने के लिए और टिकटॉक करने के लिए चैलेंज कर दो भाई, लगाओ भी। ओपन कह रहा हूं पूरे फैसलाबाद से, ठीक है जी। चीमा साहब की छत, हमारी 5 छतें फैसलाबाद से रेडी हैं उड़ने के लिए। पहले पूरा कसूर, पूरे कसूर से हमारी छत जैगम फैसल वाली ये बैठी हुई, ठीक है कसूर जी। से भी एक चैलेंज आया, शायद वो म्यू है, असलम म्यू है शायद, असलम म्यू असलम म्यू का जो आपने चैलेंज वो आपने देखा होगा रात को पोस्ट उन्होंने लगाई है रात को पोस्ट जो सी पोस्ट आई थी। कौन कौन है शिगिर्द किसका? असलम म्यू आपका आपका असलम म्यू जर्मनी वाला यार, असलम म्यू अपना नहीं वो तो मेरी तरफ से मेरे शिगिर्द ने कहा ना, आपकी कसूर शिगिर्द की वाली बात छत कर से। रहा हूँ हाँ कि जी। असलम म्यू ने जो शिगिर्द कसूर में उन्होंने जितने भी अपना उस्ताद मतलब मुबशिर खोखे के जितने भी शिगिर्द हैं वो मेरे साथ शो कर सकते हैं प्यार सवाए मेरे भाई देखो, वो मेरा बच्चा है, उसने जो बात कर दी है ना, काम सारा उस्ताद ने करना, बाजी उस्ताद ने लगानी। मैं मुबशिर को क्यों कह रहा हूँ कि उस्ताद ला, तू अपना कोई उस्ताद ला जिसे मैं बाजी तो लगाऊं। अभी तो तेरा मैं उस्ताद तो मैं ही हूँ, जी जी तू उस्ताद तो ला, तो गारंटर तो लेकर आ अपना। असलम से भी अगर कोई बात करेगा तो असलम को वो कहेगा भाई गारंटर ला। कबूतरबाजी का यही असूल है। कमरा साहब मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। तू का लफ्ज हटा दे तो अच्छा। यार मेरा तो शागिर्द है ना, मैं तो उसको तू कह सकता हूँ। नहीं थोड़ा सा जी आप कह लेते हैं, जनाब कह लेते हैं। सॉरी भाईजान अगर मेरे से तू निकल गया, क्योंकि मैं तो शागिर्दी, मैं अपने शागिर्द को तू ही कहता हूँ, सही है, ठीक है ना जी। बिल्कुल सही है। उस्तादी लेवल से ना, क्योंकि अभी तक तो लड्डू उसके बाद मेरा है, अब लड्डू निकालेगा। का मकसद ये है कि वो अब जो है ये लड्डू जो है वो चेंज हो, उस्तादी वो चेंज हो। चेतर का उसको ओपन आवाज है और सारी जिंदगी की उसके साथ कबूतरबाजी है। जब तक मेरी जिंदगी है उसके साथ मेरी कबूतरबाजी है। यानी कि उसका एक्सेप्ट है चैलेंज, एक्सेप्ट है, लड्डू चेंज करे। उनका चेतर की मकसद बाजी है, लग गई इधर से। वो कहते हैं कि जी आप अपनी छत बनाए, मेरी छत है ये, वो वहाँ पर है ना। तो मेरे भाई मेरी बात सुनो, जितने चेतर बात का आपका वहाँ से हो गया ना, मेरे चेतर भाई का आप वहाँ से आवाज दे दी ना, बिल्कुल आवाज है। तो आगे पूरे मजीद फैसलाबाद आवाज में से जहाँ कोई जहाँ उसकी जेड़ के लिए छतें तैयार हैं, पूरे फैसलाबाद में हमारी छतें वहां से। अमरबाज भी बैठा हुआ है, बिल्कुल सही। ठीक है जी। बिल्कुल जी भाई करो गल। जी जी मैं भाई वालेकुम सलाम जी जी मैं भाई क्या कहना चाहेंगे आप? ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ, जी जी ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਰੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕਰਨ जिन्नियां भी उन्होंने छत्ता ने फैसलाबाद हमने अपनी पोस्ट भी लगा दी हुई है और नंबर भी दिए हुए हैं। जो वो भी तो भाई सारे चैनल से जाना लग चाहे जाएंगे ना, पोस्टें। तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। वो यार कबूतरबाजी उस दूसरे बेचारे ने किधर करनी है, कबूतर बेचने हैं। और जी आप दित्ता साहब दित्ता साहब की तरफ से चेतर का जो है आपकी तरफ से मुकाबलों के लिए आप तैयार हैं? बच्चों का हाँ बच्चों का ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣੀ ਹੋ ਲਾਹੌਰੀ ਰੂਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਲੇ, लो जी, कौन सी ठीक हो गया। ਲਾਹੌਰ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ੀ क्योंकि चीमा साहब की छत से हमारी बाजियां ऑलरेडी 10-15 घर से मैं हम ये शौकी शाकी ये नहीं करते। आमिर बात सब कह रहे हैं कि जी अगर लाहौर रूल पे आप उड़ेंगे सर, ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਰੂਲ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜੇੜ ਚ ਉੜਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ठीक हो गया। फैसलाबाद
जी जी यानी कि फैसला कैसे? रूल पहला तो जो शर्त है ना, वो जो लड्डू वाली शर्त है, वो अपना ग्रंटेड तो लेकर आए। ग्रंटेड पहले है। बाबा जी वैसे जो उस्ताद हो जाता है आपने उसे शागिर्द करके उस्ताद कर दिया, वो खुद मुख्तार वो है। खुद- अब ये आपकी शर्त है कि वो मेरी शर्त नहीं है भाई, खुद मुख्तियार किसका है वो? मेरा सवाल पूरा सुन लें। मेरा सवाल ये है कि आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाजी इस शर्त पे उड़ेगी कि लड्डू चेंज कर। पक्की बात है, पक्की बात है। इधर से कान पकड़ो, कान इधर पकड़ो। नदीम भाई कबूतरबाजी के रूट से पकड़ा मेरा ही जा रहा है। ऐसी ऐसी अगर मेरा कोई शागिर्द उसके साथ बाजी लगा रहा है तो कान तो मेरा ही पकड़ा जा रहा है, वो किसका है? अगर वो किधर बैठ के अगर बात करेगा तो लड्डू किससे खाया उसने? हाँ वो तो आपका है, ठीक है जी। वो तो आपका। दूसरी बात, मेरे ताया जी का मैं शागिर्द हूँ ना, मेरे ताया जी को कबूतर नहीं पकड़ना आता। जाद कबूतर लेकर आई जरा, वो कबूतर तो ले गया। मैं पूछ तो लूं मेरे ताया को कबूतर पकड़ना आता है कि नहीं आता, ये भी तो मैं उससे जरा उससे पूछ लूं ना, ये भी तो बाद में उससे कन्फर्म कर लूं। उस्ताद राना मुबारक। हाँ, फिर मैं उसको बताता हूँ कि जब वो पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा नहीं हुआ, मेरे ताया उस दौर से बाजियां उड़ा रहे हैं। मेरे प्यो की शादी में मेरे ताया जी शादी वाले दिन नहीं पहुंचे। ताया जी क्यों नहीं पहुंचे थे आप? अच्छा अच्छा बाजी उड़ रही थी इसलिए इसलिए शादी पे नहीं है। हाँ जी, शादी में ताया ये कबूतर तो पकड़ के दिखा दे। वो जी बड़ों का बहा, मैं आपको कबूतर पकड़ना नहीं आता। लो जी पकड़ लिया जी कबूतर। कामना था, अब तो कोई शक नहीं रहा। आहो, वो कहता कबूतर फड़ना नहीं आता। ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ जिन्हें तू समझने तेरे दोस्त ने। चलो इन बातों को इनको छोड़ दे। मेन स्थान से आपने कबूतरबाजी शुरू की है? मैं तो मेरा ख्याल है बचपन से शौक है। अच्छा, ये कौन से स्थान से स्टार्ट की आप? बाजियां तकरीबन ये 64 65। 64 65 64 65 माशाल्लाह जी। अच्छा तब से आप जो सब तो ट्रेंड वाले से मेरी बाजी उड़ी थी 84 में, 7 बाजियां जेट की, माशाल्लाह सही है। 2 मिनट कितने मिनट सब चैनल जीते हैं। अच्छी कबूतरबाजी इसकी। सही हार जी तो गेम का हुसन है ना। जी जी 3 बंदों के साथ बाजी थी मेरी, 2 को मैंने जीत लिया, उनसे हार गया। अच्छा बाबा जी, इसके अलावा लाहौर की जो दूसरी छतें हैं, जैसे लाहौर कलंदर वाले हो गए, वो मलिक मुंतजिर और 2 बंदे हो रहे हैं, उनके लिए क्या जो है? वो यार वो भाई है मेरे, कोई शौक, कोई उन्होंने चाकू तो नहीं मार दिया। ये मैं कबूतरबाजी में आया किस लिए? मेरा मतलब क्या है? मोहब्बत के लिए। अगर उन्होंने कोई बात ऊंची नीची की भी है ना, तो मैं नहीं करूंगा उनसे, क्योंकि मेरा ज़र्फ नहीं है ये। क्योंकि मैं तो अभी इस वक्त बड़ी दुनिया का रोल मॉडल बाबा सिकंदर बना हुआ है, तो बाबा सिकंदर खुद बदतमीजी पे आ गया तो लोगों को क्या मैसेज डिलीवर कर रहा है? मेरी नस्ल में, मेरे ज़र्फ में ये बात नहीं है। अगर मुझे किसी ने, मेरे बड़े ने कोई बात कह दी है ना, तो मैं आगे से चुप हो गया हूँ, मैंने उसको जवाब नहीं दिया कभी। ये मेरे ज़र्फ में। मुझे कितने ही मीडिया पर्सन पे लोगों ने बताई है बात जी, उसने चैलेंज कर दिया, उसने कर दिया। उन्होंने पूरी मूवी नहीं देखी। शेख अख्तर लुबना साहब, मैं उनको मेरे फेवरेट प्लेयर है वो, मैं उनको बहुत अच्छा, क्योंकि उनकी परफॉर्मर है यार, परफॉर्मर है। उन्होंने मूवी नहीं देखी। अच्छा लाहौर से आपका क्या प्लान है अब आगे कबूतर परवरी का? क्योंकि ज्यादातर इस पर जो उजर आता है वो यही आता है कि जी लाहौर वाले लाहौर में जरा लाहौर में सिर्फ ज्यादा यार लाहौर वाले मुझे कह रहे हैं शौक करने के लिए, मैं तो नहीं किसी के घर में गया शौक करने। सही। जब मैं किसी के घर में जाऊंगा तो लाजम मैं लाहौर में से छत उठा के उनके पास जाऊंगा, ठीक है ना जी। जैगम की मेरी छत है, ठीक है ना, लाहौर में। अभी मेरी उधर से तैयारी नहीं है, जैसे मेरी तैयारी होगी, क्योंकि मैंने अभी बच्चे इधर छोड़े हैं, क्योंकि उधर क्या जैगम उड़ता है, अभी उड़ता है पूरे लाहौर से, लेकिन मैं नहीं उड़ाऊंगा। क्यों? इनको जीत भी गया, इन्होंने मानना नहीं, मैं ना मानू, मैं ना मानू। उन्होंने कहा वो तो जैगम की थे, वो तो पहले भी उड़ता था, उसकी छत थी, वो तो आपका शागिर्द हो गया, वो जी पैसों के लिए हो गया होगा, क्योंकि उधर ही निकालना है ना, उधर ही निकालना है, कबूतरों के लिए, पैसों के लिए, और किसी के लिए उधर बना लेते हैं। तो कोई उधर नहीं, जो से भी भाई दोस्त हो, आप अगर शौक करना है, आप शौकीन समझते हो, ठीक है ना। छत पे टोटल कबूतर मेरे हैं, मेरे कबूतरों का जोर है, मेरा जोर देखना ना, मेरा ही जोर देखना ना। तो जिससे की छत पे कबूतर भी सारे मेरे हैं, तो जोर देख लो। आपने कहा शौक करने के लिए, मैं तो नहीं किसी को कहा। तो ये और भी जिन्होंने अगर कोई शौक की किसी को है तमन्ना, तो बिस्मिल्लाह, छत है, उड़ते हैं। और अगर किसी ने ग्रुप ला के शौक करना है, तो मैं भी ग्रुप ला के शौक करूंगा। किसी ने 1 to 1 करना है,
کہ جی ہماری ایک چھت ہے, ہم ایک چھت سے مقابلہ کرتے ہیں تو ایک چھت سے کروں گا. لیکن عمران بھائی اوپن دیتا ہے انہیں لاہور دی تے شک بھی رکھی کوئی نہیں. انہیں کہا کسی جگہ تو ہوئے لیکن شرط ایک بابے دے کبوتر ہونے. میری چھت بابے دے کبوتر جویں دا پہلے لڈو چینج کر لویں اس تو بعد جویں دا انہیں شوق آ کے وہ میں انہیں نہ کر سکتا. ٹھیک ہے. انہوں نے لڈو چینج دوسرے جڑے دو بھائیاں نے اگر کیا ہے نا بازی لان دا تے بسم اللہ جتھے وہ سانو سادتے نے جتھے وہ کہندے نے چھت بلوچ صاحب بلوچ والی چھت. اللہ دیتا یہ نہیں گا ہوں تسی میرے اتنے تلوار رکھ دیو گھر راہ اڑا کے دکھاؤ تسی مینوں کی میں تہاڈا زر خریدا غلام ہے گا. یہ تے شوق نہ کرن والی پبلسٹی کرن والی گل ہے. شوق دی دعوت ہے تے شوق لاؤ. اگر تسی کوئی پلیئر ہی دکھانی ہے کوئی شوق دکھانا ہے تے تواڈے کی اس علاقے دے شاگرد نہیں اتوں اپنے شاگرد کڈ لو. پنجاب پورے جتنے جتنے تواڈے شاگرد نے کڈ لو. ٹھیک ہے نا جی. اسی اٹھنے وڈیاں دی فیصلہ آباد قانون دے حساب نال اسی اٹھنے. ٹھیک ہے جی. جیڑا اپنا کسی نے لاہور دے رول دے حساب نال کیونکہ اسی کسی نے بازی لائی نہیں تے ساڈے نال چیتر دا شوق کردے نے ساڈا قبول. اسی اوپن ہے کبوتر بھی میرے کھیل پانی بھی میرا چھت بھی میری تے نام بھی میرے تو اڈے گی. بلوچ دا نام بھی نہیں آئے گا. صرف چیتر ہی اڑیں گے جی اللہ دیتا بلوچ صاحب. یہ آگے کسی سیزن بھائی کامران آپ تو دیکھ کر آئے. کامران میری بات سنو آپ تو دیکھ کر آئے چھت پر. کیا آپ نے وہاں پر ایک کبوتر بھی بڑا دیکھا؟ نہیں. ٹوٹل بچے ہیں بالکل. تو یار بچے ہیں تو پھر چیتر کی بچوں کی لگے گی نا. اس سال صرف چیتر نیکسٹ سارا نہیں 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 چیتر بچوں کی ہمارے سے اڑ گئی اور ہم نے ان کے پر کھینچ کے اگر وہ ہمارے کبوتر ہمارے مطابق تھوڑے بہت اڑ گئے بڑوں کی بھی اڑ گئی اسی سال. یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں تو ہو سکتا اللہ پاک نے یہی سال موقع دیا. ایسا کریں نا پھر وہ تو یہ بات ہے نا کہ تیاری ہوئی وہ تو اگر پہ آ گئی نا بات. اگر کو چھوڑ کے اگر آپ کانفیڈنٹلی لگاتے ہیں کانفیڈنٹلی اگلے سال سے تو ہم ریڈی ہیں ہی ہیں نا. اگلے سال سے ریڈی ہیں ہی ہیں. اگلے سال سے مراد اس سال بچوں کی اگر کسی جو آپ کو کی شوق تیاری ہے ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں. میرے بھائی دیکھو چیتر بچوں کی بات بسم اللہ کبوتر ٹوٹل میرے. ٹھیک ہے جی. میرے گھر کے کبوتر میرے نام سے بازی لگانی ہے وہ اپنے استاد جی کے ساتھ میرے نام کا پرچہ لکھ لیں. اگر انہوں نے خود لکھنا ہے تو میرے شاگردوں کے نام سے پرچہ لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. بے شک وہ استاد اصول میں آپ کا جو شاگرد ہے اسلم میں ہو ہاں کوڑا میں بھی لگاؤں گا. اس نے اگر مجھے ساگ اور جیٹ کی آواز دی ہے. میری وہ تو اس نے اپنے ذاتی طور پہ ذاتی طور پہ کی ہے نا بچہ ہے ذاتی طور پہ اپنی طور پہ دے گئی ہمارا ہے. مقصد اس سے ہماری جو چھت ہے نا جی وہ زیگم علی چھت جو ان کی ان کے لیے حاضر ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم لگائیں گے ان سے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. ابھی ہمارا پورا فوکس جو ہماری پوری کبوتر بازی اس وقت چل رہی ہے وہ ٹوٹل چل رہی ہے اللہ دیتا کی چھت کے لیے. چلو ماشاء اللہ جی. اب اس وقت 1000 سے زائد بندے تو میرے پاس ہیں جو لائیو ہیں اور 250 کے قریب 200-250 ان کے پاس بھی ہیں اور سب کے پاس اچھے اس وقت مطلب تمام پاکستان اس وقت میرا خیال بھائی ہے جان جتنے کبوتر برابر بھائی ہیں نا ان سب کو میں جو نا جی بہت دل سے ان کا مشکور ہوں کہ وہ میرے سے پیار کرتے ہیں. اور جتنے میرے فین فالوور ہیں ٹھیک ہے نا جی ان کے لیے پیغام ہے کہ یار خدارا اس کبوتر بازی کو نا جنگ نہ بناؤ. میں نے بھی دیکھا مجھے بھی دل سے بڑی تکلیف ہوئی ہے. بے شک وہ مبشر کے لیے غلط بات بول رہے ہیں. نہیں بولو یار نہیں بولو. اس شوق کو جو ہے نا جی ایک اچھے انداز میں. ہاں جی زیگم صاحب بھائی کامران گل کرنا چاہ رہا سی کہ استاد ملک مبشر شکر صاحب نے چیلنج کرتے ہوئے یہ گل نال مینشن کی کہ اگر اس سال انہوں کی تیاری ہوئی بھی نا تو اگلے سال تک سب میرے نال شوق طے کر سکتے. ٹھیک ہے. استاد محترم اسی یہ نہیں کہہ رہے کہ اسی استاد دے نال بلکہ سانو استاد دا ساتھ چاہیے تو ساری چھت پورا اختیار استاد رہتا. جویں آرڈر کرن جو کہندے جو انہاں دا حکم اسی ہوندے استاد رن استاد ملک مبشر کھوکر صاحب نے میسج دیتا ہے جی اگلے سال دی مطلب اس سال اگر تیاری نہیں ہے تو اگلے سال تک وہ میرے نال چھتاں جڑی نا استاد بابا صفدر صاحب شو کر سکتے. ٹھیک ہے. 2024 جیٹ چ میری چھت تو میری استاد اگے ریکویسٹ ہے کہ انہاں دا جیٹ دا جڑا چیلنج ہے اپنی شرط مکمل کر کے استادی شگردی والی تے میری چھت انہاں دے کے 2024 دا انہاں نے شو دے. جی بابا جی وہ ابھی یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. جو مجھے چیز اچھی لگی پازیٹو پوائنٹ یہ تھا کہ زیگم بھائی نے بات ضرور کی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میرا استاد اجازت ہے اپنی طرف سے انہوں نے ڈائریکٹ فائر نہیں کیا. یار یہ ایک اچھی بات ہے اچھی مثال ہے. یار جی کل رات سے اتنی پوسٹیں لگ جانی تھی ٹھیک ہے نا جی. میں نے ساروں کو روکا. میں نے کہا یار اگر وہ غلطی کر رہا ہے نا تو ہمیں غلطی نہیں کرنی چاہیے. آج کے دن تک وہ میرا شاگرد ہے
कि मैं 1000 बंदों को कह सकता हूँ कि भाई मैंने उसको शिगिर्द किया हुआ है, सही ठीक है, इसमें वो मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि जब एक रस्म फिर क्यों बनी हुई है लड्डू की, हाँ, या फिर खत्म यार खत्म करो फिर इसको खत्म करो फिर। ये जो बड़े उस्ताद हमारे बैठे हुए हैं उनसे मोतबराना गुजारिश है, अगर ये उन्होंने एक रीत बनाई है कबूतरबाजी की, ये तो बंदा उसको सीधा चैलेंज दे रहा है, बिल्कुल सही है। ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है इस बात के। या तो ये वो लड्डू छोड़े जो हमारा असूल है कबूतरबाजी का, दूसरे से लड्डू खाए, लड्डू छोड़े बाजी। सबसे पहली चीज तो ये है कि जी वो अगर नदीम भाई एक मिनट में बात कर रहा हूँ, लड्डू नहीं छुटता, गेम के मुताबिक जो गेम है ना उसको समझे, उस्तादी शिगिर्दी के बगैर तो बाजी है ही नहीं मेरी जान। आप मेरी लड्डू जान, के बगैर लड्डू बाजी तो की तरफ आ तब्दील होगा जाते हैं। जब वो किसी और का किसी लेगा, दफा ये आपने- बात थी। हाँ तो वही चीज पे और आया। इनको अपना आइडियल मानते हैं। अगर वो आइडियल मानते हैं, मैं शेर दूं। जरा बहस छोड़ो जरा, अगर वो अभी भी बाजिद रहते हैं कि भाईजान बाजी लगाएं आप उजर न दें, वो उसने फिर पब्लिसिटी करने के लिए काम किया जो नजर आ रहा सारों को, दुनिया पागल नहीं है। नहीं तो अगर वो मिसाल दे रहे हैं उनकी, जिस बाजी की वो मिसाल दे रहे हैं, तो पीर भाई तोड़ सकते हैं फिर भी। कैसे? जैसे उन्होंने मिसाल दी थी बाहू की और बोदी भट्टी साहब की, भाईजान हमें कबूल नहीं है ना, ठीक है, आप कहते हैं हमें चैलेंज कर रहे हो आपस में लड़ें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो पार्टी चेंज करें, नहीं, वो काम तो मेरे दोनों पकड़े जा रहे हैं ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस्ताद मलिक मुबशर अगर दित्ता हारा तब भी मैं हारा, ठीक है, अगर मुबशर हारा तब भी मैं हारा, सही है, ठीक है। और फिर ग्रांटेड भी तो चाहिए ना, ग्रांटेड उस साल लाएगा तो ग्रांटेड मिलेगा ना। जो इतनी पार्टियां बनी हुई है, जो सरबराह पार्टी होता है, सारा मुद्दा उसके ऊपर नजला उसके ऊपर क्यों गिरता है? अगर उसका कोई उसको रोल मॉडल उसको रखा ही नहीं किसी चीज में, ठीक है जी, तो वो तो फारिग हो गया बंदा। इतनी सी जो पार्टी है उसके सरबराह हेड तो फिर तो कोई भी नहीं, जिसका दिल उठेगा अपना कानून चला देगा। इस 1-on-1 मुकाबले के लिए सबसे पहली शर्त जो आपको, वो मैं नहीं शर्त रख रहा यार, कबूतर परवरी की बात जो उसूल है वो लाजिम, आप कह रहे हैं कि जो उसूल है उसके मुताबिक चले तो बाजी लगती है। बिल्कुल लगती है। इसकी मिसाल ये है, सिकंदर बाबा ने अजीब मैं अस्कर को छोड़ के उनकी वो पग वापस ताया से ली। वापस कर आपके लिए मैं खुद उस्ताद था, मैं शिगिर्द होके हाजी साहब का, फिर मैं उस्ताद को, उस्ताद क्योंकि हमने दफ में आना था, पूरी हमने दफ के अंदर एक हुस्न है कबूतरबाजी। ऐसे ही है। कानूनन काम हो के फिर आगे हो। बिल्कुल सही, आप पहले भी उस्ताद थे। अब मेरी कोई भी बात है, कोई भी मेरी गारंटी चाहिए होगी, तो मेरी जो सी है अपना इखलाक खान पार्टी, तो वो मेरी जिम्मेदार है ना, बिल्कुल मेरी पूरी जिम्मेदार मेरी पार्टी है। ऐसे ही है। जहाँ जहाँ मेरी पार्टी बैठी हुई है, अगर मैं किधर भी कोई हरकत करूंगा तो मेरी पार्टी को पूरी को देनदार है, जिम्मेदारी आएगी उन पर। इसका जिम्मेदारी कोई नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? जिम्मेदार तो लाए अपना कोई। यार देखो ये आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से मैं जिम्मेदार नहीं बन सकता। कैसे बनूं? एक तरफ तो वो मान ही नहीं रहा, वो बोलता है 3600 तो उस्ताद वो बना लेता है, कभी किसी को मानता है, कभी किसी को मानता है, कभी किसी को मानता है। अच्छा, एक और इसने बात उधर की, राणा मुन्ना साहब वाली ना, ठीक है जी, शुद्धनी छोड़नी है ना, छोड़ दो, शुद्धनी है छोड़ दो। क्या चीज? कि वो एक मूवी वायरल हुई थी, इसने कहा था जी कि उसमें मैं अपना आइडियल उड़ाने का अपना राणा मुन्ना को मानता हूँ ना, अच्छा जी, ठीक है जी, कल भी कहा। कल भी का, ठीक है ना जी। और उसमें वो जैन को जोन सा अपना गलत जोन सा वो मैसेज भेजा गया कि जी वो उस्ताद उन्होंने डिलीट करवा दी। बिल्कुल मैंने करवाई, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ मैंने करवाई। क्यों? कि यार मेरी जो फैन फॉलोइंग है, मेरे जो दोस्त अहबाब है, उन्होंने कोई 100 200 300 400 बंदों ने मुझे मूवी भेज दी कि भाई शिगिर्द आपका है, सारा कुछ आप कर धर रहे हो, ठीक है, बकौल आपके, ठीक है ना। वो तो ये बात मानता ही नहीं है, वो तस्लीम नहीं करता, क्यों मैं ना मानू। अच्छा, वो जिस बात पे हंस रहे थे वो मुझे नहीं इस बात पे। हाँ जी, वो ये बात थी। शाम को मैंने उनको कहा भाईजान मेरे इतने फैन फॉलोइंग है, इतने दोस्त हैं मेरी, ये देखो मुझे दुनिया क्लिप काट काट के भेज रही है, ये आपने क्या तमाशा की है? ओहो साजी गलती होगी, जिस तरह अभी गलतियां की हैं, अभी मूवी बनाने में जो गलतियां की हैं, ओहो साजी गलती होगी और जैन डिलीट मार सादा फोन आया, वो इसलिए हुआ था। तो मेरे अच्छा, को एक और उज़र था हाँ जी, कि जी जब मैंने उन बात की, मैंने कहा देखें जी हमारी जो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीमा साहब हो गए, बलोच साहब हो गए, बेगम हो गया, इसके ये प्रोफेशनल लाइफ इनकी एक अलग से लाइफ है, आमिर भाई हैं इनकी भी एक अलग लाइफ है। तो ऑब्वियसली 4 अकाउंट तो नहीं हर बंदा बनाता फेसबुक पे,
तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, किसी पे भी वो एक ही अकाउंट होता है, तो उसमें आपके जो प्रोफेशनली जो लोग हैं वो भी आपके साथ अटैच होते हैं, या आपके रिश्तेदार, खानदान वाले भी, दोस्त अहबाब, कोई भी होता है अटैच जरूर होता है। कम से कम फ्रेंड लिस्ट में ना हो, फॉलो अप तो कर रहे होते हैं ना। तो मैंने उधर कहा था कि जी हमारी जो जबान है, जो हमारे कबूतर परवरों का जो शौक है, इसमें खूबसूरती और शाइस्तगी रहनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने ये उज़र दिया था कि जी बाबा जी जो बात करते हैं, सब उस्ताद ऐसे हैं, सब बिकाऊ हैं, सब यूं करते हैं, सब यूं करते हैं। जो बेचते हैं ना, वो जो बेचते हैं, वो जो बिकाऊ हैं, और उनको मैं ये बात कहता हूं कि यार खुदा का वास्ता है, अगर आप गलत करके किसी को चीज देते हो तो उससे आपको नहीं, वो आपकी माँ बहन की आपको गंदियां गालियां बकरे होते हैं पीछे से। और मैं इसी को चीज को करने आया हूं कि यार अगर हड्डी जोड़ पर का पता चल जाएगा, बंदा खुद जाके कॉन्फिडेंस से कबूतर खरीद ले, क्यों उसमें उधर खत्म हो जाता है। स्पेसिफिकली आप किसी को नहीं कह रहे, आप एक माशरे की बुराई के बारे में जिक्र कर रहे हैं। हाँ ठीक है, और मेरा क्या लेना देना यार, और मेरा लेना देना क्या है। मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि यार शऊर आ जाए बंदों में, हड्डी जोड़ पर। मैंने आज तक किसी भी बंदे से कबूतर लेकर आया हूं ना, अच्छा निकला है, गंदा निकला है, बुत नहीं देता, मादी अंडे नहीं देती, मैंने नहीं उसको कहा, क्योंकि भाई मैंने शौक से लाया हूँ। वो मेरे घर तो नहीं आ गया कोई बेचने वाला, कोई बेचने वाला मेरे घर तो नहीं आ गया, मैं खुद गया उसके घर, मैंने खुद पसंद करके लिया। आपसे भी हजारों दुनिया पूछती हो कि किसके अच्छे हैं, आप बोलते हो यार मैंने तो फलाने के बड़े अच्छे लगे। सही। अब उसमें आपका भी दोष आ जाएगा कि आपने कहा फलाने के अच्छे, सही हो गया ना। जो लोग मीडिया पर्सन को गलत कहते हैं ना, मैंने कभी कहा हो, आप लोगों ने सुना हो मैंने किसी मीडिया पर्सन को बुरा कहा, तो यार आप लोगों की एक छोटी सी एक रोजी है, जो आपके सामने जो बंदा बैठा है उसने जो बात आपसे कहनी है आपने वही करनी है ना, उससे ज्यादा कम तो नहीं कर सकते। उसमें भी आप बाकियों के साथ तो मेरा इतना वो नहीं है, लेकिन कमरान के साथ तो ज्यादा है ना। वो पीरा ये तूने क्या कर दिया, ओ पीरा ये तूने क्या कर दिया। मैंने कहा यार वो बंदा मुझे अब ऐसे कह रहा था, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने तो मेरी तरफ से कोशिश की है अच्छा दिखाने की, ठीक है ना। उसने कहा मेरे सारे दिखाने ने, मैं बेचने की, ठीक है जी। तो मेरी कोशिश ये है कि यही मीडिया की वसात से ही बाबा सिकंदर आया ना आप लोगों के पास, या और भी जो आप लोगों के इतना शौक आया वो कहां से आ गया आप लोगों को। बंदा इनसे पूछे, जो कुंडे साफ कराने वाली बात थी तो कुंडे साफ करते रहो सारी जिंदगी, तो शौक तो मीडिया लाया ना। कबूतर परवरी आई मीडिया से, फड़ के मीडिया को गाला कटन शुरू कर दो। सही है बाबा जी, जरा पानी पी लें क्योंकि काफी देर होगी बोलते हैं, बड़ी देर से बोल रहे हैं। हाँ, और सुबह से भी बोल रहे हैं। पहली दफा देखा है बोलते हुए पानी पिया बाबा जी। पिलाया है, वो भी पिलाया है, उन्होंने मांगा नहीं है। अच्छा उस्ताद जी, नेक्स्ट जो है लाहौर से जब मलक मुबशर खोखर साहब जब ये उस्तादी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो कहते हैं जी मैं लाहौर से शो करना चाहता हूं, तो क्या 2024 से या 2023 से 24 से 25 से हम आगे उनके साथ शो करेंगे? भाई पहले तो हम देखेंगे ना वो गारंटर कौन सा लाते हैं अपना, ठीक उसके है, मुताबिक देखें। उसके मुताबिक हम देखेंगे, लाया अमल देखेंगे। आगे तो वो गन्नों वाले चुक्के ले आए। एक जगह मैं कबूतर देखने गया तो मैं कमरे में गया नमाज पढ़ने, तो वो जो था ना अपना गन्नों के ऊपर ना वो फटाफट जो थे ना कपड़े डाल रहे थे। मैं क्या दिखा दे देती ने कि कैसे बुरा नहीं कहना। उन्होंने गन्ना ले लैन अब जेड़ा कोई बदतमीज उस्ताद फड़ के लैन, ठीक है, गालम गलोच करने वाले तो शौक तो नहीं होएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। शौक करने वाले होन जिन्हां नूं चार बंदे जानते होन, ठीक है ना जी, उन्हां दे नाल। मुबशर साहब ने गल की थी अपना इंटरव्यू दे विच ही कि जी वो तो मैं डॉक्टर साहब दा लड्डू चेंज करना सी, मैं ही लभ्या सी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜੋ मैं तो ਲੱਭਿਆ। डॉक्टर साहब डॉक्टर नहीं उन्होंने कहते जी मैं बाबू ताहिर का शागिर्द हूँ, उन्होंने मुझे जो है उंगली पकड़ के चलना जो है ना सिखाया। वो यार 5 उसके बाद ग्रुप पे उन्होंने कहा कि ग्रुप मैंने चेंज करना था, इसलिए मैं सिर्फ बाबा सिकंदर साहब का शागिर्द हुआ उसके बाद। अच्छा तो मेरे उन्होंने कहा था अच्छा कि बाबू ताहिर साहब के हुए, बात की थी कि डॉक्टर बाबू ताहिर साहब के हुए, नहीं हुआ था मैं। बागली मुझे उधर पकड़ पकड़ के बैठाई रखता है हर टाइम। अच्छा नाम मेंशन कर रहा हूँ, बागली का नाम मेंशन करो, कहता साडा भी एक दिन का शागिर्द होया, एक दिन का बागली चौधरी साहब से भी शागिर्दी ली है। अच्छा फिर डॉक्टर साहब का पूरी दुनिया ने टोल टमके नहीं देखे, डॉक्टर साहब का शागिर्द डॉक्टर के बाद मेरा हुआ है, डॉक्टर साहब के बाद मेरा हुआ है,
ठीक है, वो कह रहे मैंने तो सिर्फ ग्रुप बनाना था। अच्छा मेरे घर किसके साथ आए थे ये तो बताओ ना, उनको लाया कौन था? डॉक्टर फरीद साहब लाए थे। अच्छा, हाँ जी, निकाल लूं मूवी, फिर निकाल के ले आऊंगा। अगर इनकी शॉर्ट मेमोरी है ना तो मैं इनकी मूवी निकाल के ले आऊंगा। अच्छा, चलो ये देख लो। अच्छा बाबा जी, फेम की और कबूतर भी जो उड़ाने का वो सिस्टम था ना, तुराब साहब ने उस्तादी शिगिर्दी करवाई थी। उस्तादी शिगिर्दी भी तुराब साहब ने करवाई थी, ठीक है ना जी। अगर बाबू साहब को आइडियल मानते हैं, बाबू साहब को सारा मानते हैं, तो बाबू साहब से लड्डू ले लें, अगर वो दे दें तो। अच्छा बाबा जी, जब मलक मुबशर की उस्तादी शिगिर्दी आपके साथ थी, जी। आपके पास किसका लड्डू था? मेरे पास उस वक्त किसी का लड्डू नहीं था। महर असगर का नहीं था? नहीं पंचायत मेरी साथ थे? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने पहले इनको पहले मुझे शिगिर्द करवाया गया है शिगिर्द होकर उस्ताद हुए महर साहब का, फिर मुझे उस्तादी लेके दी है, फिर मुबशर साहब ने लड्डू खाया है। नहीं, जब आपने उस्तादी बदल ली, अब वो लड्डू तो खत्म हो गया, कौन सा? पिछला महर असगर वाला। दोबारा आपने उसे शागिर्द नहीं किया। एक उस्ताद जब उस्तादी बदलता है तो क्या उसके शागिर्दों को दोबारा शागिर्दी में आना पड़ता है या नहीं, ये बताइए। यार ये आप खुद ही सवाल कर लो और खुद ही इसका जवाब दे लो, ठीक है ना, क्योंकि आप भी तो उस्ताद हो। नहीं, मैं आप तो भी शागिर्द हूँ। चलो जी, शिगिर्द हो, आपके जो उस्ताद है ना, उस्तादी पीरी वाले हो ना, और एक ग्रुप वाइज आप चल रहे हो, ठीक है ना जी। मेरे भाई बात ये है सिंपल, महर साहब ने मुझे कहा चेंजिंग करो, मैं नहीं मानता, नहीं मैंने बाबा चेंज जी, किया। ये असूल है वैसे कि अगर एक उस्ताद के पास शागिर्द 2 4 वो यार 5 गारंटेड कौन है उसका? गारंटेड कौन है? गारंटेड कौन है? लड्डू को छोड़ के गारंटर ले ले, कैसे गारंटेड ले ले? कोई गारंटर बता दे लाहौर में। ये मेरे बंदा भाई कुछ ले। देखो, जब वो आपको आवाज देगा ना तो आप उससे ये बातें कर लेना, आप उससे लगा लेना, चल ठीक। आप उससे अपने दौर पे कर लेना, नहीं, मेरा एक ठीक है ना? सवाल नहीं बनता नहीं, जज नहीं बनो ना आप, जज नहीं बनो। मैं जज नहीं बन नहीं, जज बन रहे हो ना आप, जज बन रहे हो, आपको जज बनना नहीं चाहिए। जो कबूतर परवरी का असूल है, जो कबूतर परवरी का रूल असूल है, नदीम भाई उससे आप शायद वाकफ नहीं हो। चले फिर ये बता दे कि एक उस्ताद उस्तादी चेंज करता है, चेंज करने के साथ दोबारा वो लड्डू लेता है, तो उसके शागिर्दों का क्या स्टेटस होगा? कामना साहब बताओ जरा। सर उसमें इस तरह से है कि अगर एक उस्ताद उस्तादी छोड़कर वापस इस्तीफा दे देता है मुकम्मल तौर पे, तो उसके बाद जाता है वो दूसरी दफ में, ठीक है, ठीक है। तो उसके जो शागिर्द हैं, उसूलन तो ये था कि जी उनके लड्डू उनको शागिर्द किया जाए। किया जाता है। लेकिन अगर आपके मुखालफिन, या आपने अक्सर व बेशतर हमारे लाहौर के जो इकट्ठ हुए हैं उनमें देखा होगा कि जो आपके मुखालिफ हैं, अगर वो आपको कह देते हैं कि जी हम उनको अभी भी शागिर्द मानते हैं, तो आपको लड्डू खिलाने की जरूरत है। लड्डू एक आपका पर्सनल मैटर हो जाता है। सर पिछली उस्तादी शागिर्दी पिछली खत्म हो उस्तादी जाती शागिर्दी है। अगर खत्म होगी तो फिर तो उनकी उस्तादी भी खत्म होगी, बिल्कुल और अगर खत्म वहाँ होगी तो उनका तो बिल्कुल ग्रुप उसकी सारा उस्तादी तो टूटेगा। फिर महर असगर वाले लड्डू की खत्म हो गई। अगर वो इनकी उस्तादी खत्म हुई है तो फिर तो बात है कि उनकी भी टूट जाएगी ना, फिर तो उनका भी ग्रुप खत्म हो गया। हाँ जी, तो आप या तो ये कहें कि आप कह रहे हैं फिर तो मलक मुबशर खोकर की भी उस्तादी जाती रहती है। अगर लेकिन फिर वो उनको खुद मुख्तार जब कर दिया, एक दफा हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब नदीम मुखालिफ साहब ये गलत उस्तादी सुनने मेरी बात, नहीं उस्ताद जी, मैं एक सवाल से बात ये उन्हें बहाना होना है, उस्तादी में ये बहाना होना है, इसको सवाल की नहीं मेरी नहीं बात पाना नहीं हो सकता ना। मेरी बात सुनने, जब मुखालिफ हजरात सामने से बिठाने का मकसद ही ये होता है कि उस्तादी दस्तार मुखालिफ बांध। जी बिल्कुल ठीक है, जब उसने दस्तार बांध दी तो वो उस्ताद हो गया अगला। ठीक है। हम लोगों का भी इस तरह हुआ ना। अगर पहले आपकी उस्तादी खत्म हो रही है, नहीं हो रही, तो फिर आगे फिर वो तो उस्ताद हो गया ऑलरेडी, उसको मुखालफत में मान लिया। मुखालफों ने ये कह देते हैं कि जी आपके बाकी शिगिर्द सारे बहाल है। ये है ना, सर जी, जब दफ चेंज हुई, उस्ताद चेंज हुआ, पिछले लड्डू की अहमियत खत्म हो गई। शागिर्द हजरात, शागिर्द हजरात, असातिज़ा की, लेकिन जो शागिर्द होते हैं ना वो उस्तादों को चैलेंज भी नहीं करते। नहीं असातिज़ा की, पहली दफा शागिर्द हुआ है। हजरात की जी बात जी है। बिल्कुल ये पहली दफा हुआ है एक शागिर्द उस्ताद को चैलेंज कर रहा है। बाबा जी, ये सवाल मैंने इसलिए किया था इसका कि ये उन- जवाब उनकी ये तरफ है से कि वो अपने गुजरना चेंज करे और बाजी लगाए। ये ठीक होगा बाबा। चले बाबा जी एक चीज पूछना चाहूंगा जो है ना फेम असातिज़ा की। की उन्होंने वीडियो में ये भी कहा था कि जी 2-4 साल पहले बाबा जी को कोई नहीं जानता, जब वो मेरे साथ जुड़े उसके बाद बाबा जी जो से हैं वो जी किसी जगह पे पहुंचे हैं। अच्छा चलो, मूवी से जौन सा अपना दलाइल दूं, जी जी, आप नहीं, आप अपने मौका पेश करें ना उस अपनी चीज़ का। सफाई पेश करो। बेहतर ठीक है ना जी। हाँ जब ये मेरे साथ गया था हाँ, पीर फुआद की छत पे, जिधर इंटरव्यू अपना कामरान ने किया, ठीक है। तो उस मूवी के अंदर वो उस वक्त पाकिस्तान की चैंपियन छत थी, ऐसे ही है जी। ऐसे ही है। और उसके अंदर पीर फुआद साहब ने खड़े होकर कहा था, बाबा जी मेरे बड़े भाई हैं, छत इनकी है।
बिल्कुल। ये उसके अल्फाज है मुंह के। और मैंने वहां से उस छत से मैंने किधर जाना था जी? मियाँ वाली किसके पास? खान साहब पिपला जाना था मुझे। अमीर मुख्तार अमीर मुख्तियार खान साहब के साथ। और हम उधर से निकल के गए थे काशिफ बिलाल की छत पर। वो भी सारा कुछ इसने मुझे मिलवाया होगा सारों से, ठीक है ना जी। और जो उनके कट में तस्वीर लगी हुई है मेरी, या राजा काका की जो शादी शिगिर्दी हुई है, जो उस कट में मेरी तस्वीर लगी हुई है, उससे पहले जो मीडिया पूरी मेरे पास घूमती रहती थी, मैं तो सामने आता ही नहीं था। मैं तो बिल्कुल सामने नहीं था आता। और क्यों नहीं आता था? इसी वजह से नहीं आता, इसी वजह से नहीं आता था कि यार मैं अपना बिजनेस करूं, या जो सा ये लोगों के साथ जंगे लड़ूं। रात को लड़ के मैं तो सामने ले आया, ठीक है ना। वो तो कामरान ने जो सा सारी जो थी रात जी नहीं हमें बताते लोग, नहीं हमें बताते। कैमरा कामरान की तरफ घुमाओ, कामरान से पूछो। पूछना चाहिए ना, पूछना कि ये भी तो दस नहीं जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम रात को बैठे रहे पीर फवाद अजीम की छत पे। इब्तदा में हमारी तलब कलामी हुई है। ये कब की बात है? ये भी बताएंगे। बहुत पुरानी बात है, 4 साल पहले की बात है। 2018 दिसंबर, 4 साल पहले वही 2018 दिसंबर। तो उस वक्त में हमारी बात हुई थी बाबा सिकंदर साहब से। रात को वहाँ मुलाकात हुई थी, मुबशर भाई भी थे, हम सभी थे, शहबाज सा। तो इकट्ठे बैठ के बात हुई, तो इन्होंने कहा जी कबूतरों के पॉइंट के बारे में लोगों को पता ही नहीं। मैं कि इतना अगर आपको पता तो आप बताते क्यों नहीं? फिर बताएं ना, हम भी तो देखेंगे आपको कितना पता है। तो वो मैं गलती कर बैठा हूँ, वो आज तक बाबा क्या अच्छा, उसमें लड़ाई क्या थी? उसमें 200 भाइयों लड़ाई क्या थी कि यार मुंतजिर भाई हमारे जी करें आप, हमारे जो अपना कबूतर परवरी है ना यार, हमारे जो से ना सफीर आप लोग जो यूरोप में पूरे बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान में है, वो तो फिलहाल तो मेरे को लोगों के साथ जो उनसे अपना लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। तो आप लोग हमारे सफीर हो, आप लोगों ने शो करवाना है। हम जो बाहर बैठ के शो कर रहे हैं, आप झूठ बचाओ सच बताओ, हमारे लिए तो वही सच है। तो मेरी कामना से लड़ाई ये थी कि यार प्रॉपर कबूतर को दिखाओ, प्रॉपर बताओ, ताकि लोगों का भला हो जाए, फायदा हो जाए, ठीक है ना जी। कहा था कि 150 लाइन में लगा होता है कबूतर, तो कैसे प्रॉपर दिखा ले? 2, 4, 500 तो बंदा प्रॉपर दिखाता है। वो कहता है ये हमारी मजबूरी है, जिसके घर जाते हैं भाई हमारी रोजी रोटी है, हम अपने क्लाइंट को कैसे नाराज कर रहे हैं? सही बात है। मैं कहा अच्छा, और इन्होंने ही पंगा डाला था कि जी आप बना लिया करो। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, शुरू है काम। फिर शुरू है, हम बना लेंगे, हम बना लेंगे, हम बताएंगे फिर जो हमें पता होगा। उससे पहले कोई भी नहीं बंदा बता रहा था। बहरहाल इस वक्त मैं एक बात, और मैं इस बात में कामयाब हो गया हूँ कि बहुत सारे उस्ताद कराम माशाल्लाह बड़ी अच्छी परखें बता रही हैं, जो हम भी सीख रहे। किसी ने कोई बेड़ा तो उठाना था ना, किसी ने बेड़ा तो उठाना था, बात का हम भी सीख रहे। आप लोगों की बसात से सीख रहे, आप लोगों को जाती हो, लोगों का शो करवाते हो, उससे हमारा भी फायदा। पहला से ही चुके नहीं तुझे बहुत बात ही चुके हैं। ਕੰਮ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ 2016 ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਮਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾ ਬਦਲ ਲੋਕ, ਤਰਾ ਬਦਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲਾ ਮਾਜਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਕਾਮਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਣ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਹਿਨ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਜਿਸ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਚੇਤਰ 2023 ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੌਕ, ਚੇਤਰ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ
ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ 24 ਤੋਂ 24 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਰ ਦਾ ਇਸੇ ਦਫਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠ दिता मैंने छत पे बिठा दी है, दिता छत पे ही अल्लाह की रहमत से। और मैंने अचीवमेंट क्या की है कबूतरबाजी में। और दिते तो भरा किथे गन बुलाओ, इधर आ भाई, इधर आ, इधर आ, इधर आ, दिखाइए ना कि बाबे अचीवमेंट की है कबूतरबाजी दी। ठीक है ना, ये मेरे लिए फखर की गल है। इधर आ, इधर आ, आ जा। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸਾਂ ਅੱਗੇ ਇਨ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, अब इसने ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਦੱਸੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਨੇ ਟੋਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਇਨਕਮ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ। शौक कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि भाई उस्ताद के लिए ये उन्होंने एक मिसाल बताई है कि उस्ताद एक ऐसी मैंने क्या बोला था, उस्ताद देने का नाम है, लेने का नहीं है। वाह वाह, ठीक है ना, कामरान भाई बिल्कुल ठीक। और खाली दिते के लिए नहीं है, मेरे जितने शागिर्द हैं उन सारों के लिए है। ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਨਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਕਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਜੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ, अच्छा, वो तो मेरे उस्ताद ने, मेरे उस्ताद ने मेरे नाल ही करवाना ना। ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2024 ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ। ठीक हो। वो तो मेरे साथों ने कल भी इंटरव्यू कर दिया हुआ मेरे अपना जी जी। उससे आईडी से ना, कि जिसने भी बाबे को बात की है तो पहले बाबा शागिर्द हमारा है, हमारे साथ, यही तो मैं उससे गारंटी मांग रहा हूँ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਜੋ ਚਲੋ ਕਈ ਕੋਈ ਛੱਤਾਂ ਹੋ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਰ ਦੇ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਛੱਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਰੀ ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਓ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ये किसी ने नहीं, उन्होंने कहा है अपने खुडे से, अपने घर से, तुम वो सुनो तो सही। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਖੁੱਡੇ अपने घर से। ਤੋਂ ਆ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਰਿਆ ਜੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਖੁੱਡੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਲੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦਿਓ। चले बारह, मेरा ख्याल है कि यहीं से इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा इस वक्त ये बातचीत हुई और मेरा ख्याल है आपका पैगाम भी पहुंच गया। अच्छा, अब दीते का भाई कहता क्या है? कहता तेरी जानी माली पैसों की, ठीक है, हर तरफ से सपोर्ट करूंगा, कहना भाई। ठीक हो गया। और इसका सबसे ज्यादा सख्त खिलाफ कौन था? ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ इसकी ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਾਏ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਐ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 2023 ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ मेरे नाल शौक कर सकता है, बाबे दे नां ते कर सकता है। 2024 दे प्रॉपर आपकी छत इस वक्त चेतर के लिए नॉमिनेट है जी, अल्लाह दिते की। और अगर वो उनके मुताबिक इस साल सिर्फ 2023 और अगले साल 2024 से तमाम सीजन ठीक है, जब तक और सब प्लेयर्स के लिए जो आपको चैलेंज कर रहे हैं या आपसे शौक की वो रखते हैं ख्वाहिश, तो ये है। लेकिन मुबश्शिर साहब के लिए स्पेशल एक शर्त, एक ही शर्त है उनके पास, ग्रांटेड वो लड्डू चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे अब मेरे ग्रांटेड इखलाक खान पार्टी है, सही है, मेरी ग्रांटेड इखलाक खान पार्टी है। अगर मैं किधर भी कोई पंगा लूंगा उसके मेरे देनदार है, ठीक है ना जी। उनका तो देनदार ही मैं हूँ फिलहाल। लाहौर से अभी हुआ क्या, लाहौर से भी आइंदा कोई शो होगी, उम्मीद है।
जी लाहौर से आइंदा कोई छत शो यार अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वोटर छोटे हैं, इमरान खान की तरह वोटर छोटे हैं, थोड़े बड़े तो हो यार लेंगे। ये तो छोटे हैं, लेकिन जो बड़े हैं उन्होंने भी तो बुढ़े हो जाना है। बड़े होंगे तो वो भी तो किसी में निकालेंगे। नए आ जाएंगे। चले उम्मीद रखते हैं अगले साल तक हमें कुछ इंशाल्लाह। बारह इस वक्त हम इसको वाइंड अप करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम दोस्तों के, तमाम साथियों के, स्पेशली उस्ताद बाबा सिकंदर साहब और इनके जितने भी शागिर्द हजरात हैं उन सब के भी शुक्रगुजार हैं बाबा साहब की तरफ से भी, कि जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर जो है आकर अपनी पूरी पावर को शो किया और उस्ताद मलिक मुबशर साहब का जो चैलेंज एक्सेप्ट किया। और उम्मीद करते हैं कि अब इस पर उस्ताद मलिक मुबशर साहब की तरफ से भी कोई ना कोई पॉजिटिव जेस्चर जो है वो दिया जाएगा। तो वो जो उनका पॉजिटिव जेस्चर होगा उसके बारे में भी इंशाल्लाह जल्दी आपको अपडेट करेंगे। क्या बयान है आगे से उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के बयान के ऊपर उनका, तो वो जरूर देखा जाएगा। जी जी आप भाई कामना, पहले हमारा जो शौक हुआ है ना कसूर में, जो मैं शौक करता हूँ, आपको पता है जेट का शौक करता हूँ, पिछले 2008 से लेकर अभी तक शौक चल रहा है, ठीक है। अब भाई उस्ताद मुबशर खोकर साहब ने चैलेंज करते हुए जो बात मैंने पहले की कि उन्होंने 2024 तक तैयारी का टाइम दिया जी। कसूर में जो मेरा शौक की दावत वो दे रहे हैं और पीछे रिकॉर्ड आप चेक कर लें, मैं जेट की 7 बाजियां नागावार भी उड़ा हुआ हूँ जी। मैं जेट के खत्म होते साथ 11 लगातार भी उड़ा हुआ हूँ जी। ये दोनों जो मेरे जो शौक है ना, ये दोनों शौक 2024 में मैं उस्ताद मुबशर खोकर साहब के साथ 11 दिन लगातार भी और 7 नागावार बाजियां भी शौक करना चाहूँगा। बिल्कुल सही, यानी कि जेट में 7 नागावार परवाजों का जो 1-to-1 मुकाबला उस्ताद मलिक मुबशर खोकर साहब को दावत शौक है उस्ताद जैगम फैसल साहब की तरफ से, और जैसे ही वो खत्म होंगी उसके फौरन पहले हमारा शौक हुआ है सखी पार्टी के साथ, उस्ताद अशरफ भट्टी साहब के साथ, मेरे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं, मतलब हमारे वो सीनियर हैं। हमारा शौक उनसे होता है और उनसे प्यार मोहब्बत भी वैसी है, ठीक है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। उधर से उनका भी शौक किया भी है, शौक उड़ा भी है और उसके फैसले भी हुए हैं, हार जीत भी हुई है। उसी तरह शौक का जो ना, मैं इनसे साथ उड़ने के बाद 11 जेठ के बाद फौरन बाद 11 दिन लगातार भी इनके साथ 2024 में उड़ना। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद ये अल्ताफ चीमा साहब जो है उनकी लागी है ना, इसलिए 1-to-1 मुकाबले जो है वहाँ पर ऑलरेडी तय हैं अपने इलाके में, इनके इलाके के रूल के मुताबिक। तो लिहाजा इनके इलाके के रूल के मुताबिक अगर उनके कोई भी शागिर्द हजरात या वो खुद भी इनके साथ शौक करना चाहें इनके रूल्स के मुताबिक, क्योंकि इनकी पहले से 1-to-1 मुकाबले तयशुदा हैं, तो अगर आप उन्हीं रूल्स पर शौक करना चाहें तो अल्ताफ भाई आपकी छत हाजिर है। जी जी हाजिर। और एक आमिर भाई की तरफ से डिफरेंट ऐलान है कि छत उनकी फैसलाबाद में है, लेकिन साइया वाला हाँ जी, लेकिन उनकी तरफ से एक ऑफर है कि जी मैं अपने शहर के मुताबिक नहीं उड़ाऊंगा, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जेट का लाहौरी रूल पर भी शौक तय करें तो मैं राजी बेरजा आपके साथ शौक तय करता हूँ इसी साल से, लेकिन शर्त है कि लड्डू चेंज हो। लड्डू चेंज करना ही करना है ना जी, लड्डू की गल ठीक है चले ले जी। इसके साथ ही हम तमाम दोस्तों को यहाँ पर दें इजाजत। और ये बड़ा चेतर बच्चा ना जी कह देते था बड़ा चीमा साहब ने चेता दा बच्चा ना तो चैलेंज किया, अगर उस्ताद मुबशर खोकर साहब ना अगर उस्ताद बाबर आया यार साहब की कोई छत को मौजूद होवे, अगर चेतर के बच्चे मेरे ना उड़ाना चाहे तो मैं ठीक हो गया। तो ये जी अब निजाम यहाँ पे चलने वाला है थोड़ी देर में बारबेक्यू का, तो लिहाजा हमें बहुत भूख लगी है। हाँ जी बारबेक्यू खिलाते हैं भाई, सारों का भी बारबेक्यू आ गया। हमें इजाजत, नुमान जा रहा है कोई लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बंद हो